Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and welcome to a brand new video. So I planned this video in September itself, but then it was a bit too late for me to post it because it was already 10th of September or something, and I thought it wouldn't be that useful. So I thought ki first week of October mein I will post this video, which will be pretty helpful for you if you use it properly. Yes, you can revise your completed syllabus or all your completed portion more than 3 times in a month. And also, not to mention, this can be applicable for NEET aspirants, JEE aspirants, or literally anyone from any stream. There is going to be a template which you can make, like you can fill in your own chapters. I'll show you my template and then I'll show you like how you can also make one for yourself, and you can add different chapters obviously. So yeah, stick with me. So I have created this planner in such a way that you get to revise 4 chapters from 4 different subjects every day, okay? And it had to be this way because I wanted to maximize your potential. And trust me, आपको रिविजन को 3 hours से ज़्यादा नहीं देना है पर डे इफ़ यू आर ऑलरेडी बर्डन्ड विद सम अदर स्टफ. बट इन केस समडे आपको ऐसा लगता है कि आज अब टेस्ट नज़दीक आ रहा है, आई नीड टू पुट मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स रिविजन, देन यू कैन इंक्रीज योर रिवाइजिंग पीरियड. ठीक है, सो देखो, पूरे दिन में 4 hours तो लेक्चर में चले जाते हैं. इफ़ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट देन 6 to 7 hours आई एम अज्यूमिंग कि आपका स्कूल में चला जाता है. So when you come back home, you complete all your homeworks, and if you're a regular student, I'll suggest you do not go very deep into the school stuff as if now, because if you are in 11th grade, then you don't need to be that well in everything. मतलब अगर project मिल रहा है तो ठीक है, low level पे कर लो. Try to take help from your mother or someone. I used to do that in 10th. लेकिन अगर मतलब नहीं हो रहा है, you are not able to manage it, then I'll suggest you to be very minimal. Do not over exaggerate your notes. जितना टीचर बोल रहे हो उतना करो and then get rid of it, okay? And come back to your actual aim. So yeah, when you come back from your school, or like if you are a dummy student like me and you are always at your home, तो फिर भी पूरा दिन चला जाता है लेक्चर के नोट्स एंड जो प्रेजेंट में DPPs है, फिर प्रैक्टिस शीट्स मिलते हैं, मॉड्यूल है, तो ये सब में भी टाइम चला जाता है. आई गेट इट. एंड कभी कभी तो बैकलॉग हो जाता है किसी पर्पज से, तो उसको भी कवर करने में टाइम लगता है. दैट आई अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि 3 hours कभी भी either you wake up really early in the morning, and I'll suggest you to do this, क्योंकि अगर आप सुबह उठकर पढ़ोगे ना तो आपको रिविजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. योर ब्रेन विल बी वेरी वेरी खाली, सो यू विल बी एबल टू फिल इन अ लॉट ऑफ स्टफ्स. ठीक है, सो आई विल प्रेफर यू कि अगर आपका स्कूल 7 o'clock या 8 o'clock है, देन यू वेक अप एट 5 o'clock और 4:30 और वट एवर. बेड पे जल्दी चले जाओ सोने, एंड यू विल बी लाइक आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड. यू नीड टू बी गाइज, बिकॉज स्कूल से आने के बाद लेट नाइट स्टडीज़ करने से यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग योर स्लीप साइकिल, क्योंकि आपको तो सुबह उठना ही है एनी हाउ, राइट? सो अगर आप लेट नाइट जग रहे हो, which is okay if you want, but what I'll suggest is try waking up early in the morning. That's way more efficient if you wanna do good revision, okay? So yeah, and कुछ चीज़ें तो sacrifice करनी पड़ती हैं यार. आज नहीं तो कल करोगे, so आज कर लो, बेटर है, तब ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होगा यार. So हाँ, सुबह उठो, ठीक है, 3 to 4 hours जितना भी टाइम मिल रहा है, या फिर 2 hours ही मिल रहा है, तो सबसे पहले तो बायो रिवाइज कर लो पूरा. बायो में ज़्यादा टाइम प्लीज़ मत देना, बायो के नोट्स मत पढ़ना, बायो का NCERT पे ज़्यादा फोकस करो. ठीक है, if you have bio, like this was an advice for NEET students, but if you haven't taken bio and you have like maths or something else, then I'll suggest you to revise the theoretical part in the morning first, and then you go towards the numerical thing. अगर आपको लग रहा है कि सुबह सुबह मैं 5 न्यूमेरिकल फिजिक्स से बना लूँ, वेरी वेल एंड गुड, डू दैट. या फिर केमिस्ट्री के 2-3, ज़्यादा मत करना है. ऐसा लोड मत ले लेना कि 50 क्वेश्चन सुबह सुबह बना रहे. दैट इज इलॉजिकल. आई एम टेलिंग यू टू रिवाइज, नॉट टू लर्न एवरीथिंग अगेन, ओके? सो रिविजन में एकदम उसको क्विक, क्रिस्पी एंड अमेजिंग बनाओ. कम से कम क्वेश्चन रखो, बट क्वेश्चन शुड बी एफिशिएंट. अब क्वेश्चंस सुबह सुबह बैठ के मत खोजो, ठीक है? रात को सोने जाने से पहले टेक योर 20 minutes, मार्क द क्वेश्चंस कि कल मुझे ये बनाना है. एक बार देख लो कि कैसे बनाना है. सो डबल टाइम यू विल रिवाइज इट. एक तो क्वेश्चन पहले बार देख के तुम सॉल्यूशन माइंड में सोचोगे, और नेक्स्ट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, I have revised it yesterday, so now I know how to make it. Or yes, one more thing. While revising, if you are forgetting something, please go back to wherever that information comes from. क्योंकि तब ऐसा regret मत करना कि I am forgetting everything, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, बन ही नहीं रहे questions. नहीं बन रहे, it's okay. पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तो बनेगा ही नहीं, obviously, अगर revision कम है तो.
जैसे जैसे रिविजन करना चालू करोगे वैसे वैसे बनेगा. वन मोर थिंग नॉट टू मेंशन कि अगर स्टार्टिंग में आपका रिविजन के लिए आपको थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ स्टार्टिंग के कुछ डेज आप बस नोट्स पढ़ो या फिर आप बस एनसीईआरटी पढ़ो और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करो. फिर फर्स्ट वीक के बाद से न्यूमेरिकल भी बनाना चालू करो रिविजन में. जैसे मान लो पहला दिन आपने रिवाइज किया एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर फिफ्थ डे फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर आने वाला है, तो पहले दिन आप नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ के या वीडियो देख के रिवाइज कर लो एंड फिफ्थ डे जब आप फिर रिवाइज करोगे उसे देन यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. दैट विल बी बेस्ट. यस. So yeah, now coming to how the planner looks, this is how it is. So as you can see here, on day 1 we have 4 subjects, then on day 2 we have 4 subjects, and this is specifically my revision planner, but you can also make it similar to mine, or you can also follow mine if you are also a NEET aspirant. But in case you are from some other stream and watching this video, then I'll suggest you to follow my steps, which I'm just going to tell you after this. Now I'll tell you how you can make one for yourself. So firstly you need to make it in a like big chart paper or something, and you write day 1, then give 4 blanks, then day 2 4 blanks and like that. फिर एक A4 साइज पेपर लो एंड जितने भी चैप्टर्स का आपको रिवीजन पूरे मंथ में करना है, जैसे किसी मान लो फिजिक्स में 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स है तो सबको लिख लो 4 टाइम्स और 3 टाइम्स. ठीक है. फिर आप क्या करो, रैंडम ऑर्डर में मान लो डे 1 पे वर्क एनर्जी एंड पावर लिख दिया, अब सीधा 7th पे चले जाओ और वर्क एनर्जी एंड पावर लिख दो, फिर सीधा 30 पे चले जाओ, फिर सीधा 16 पे आ जाओ. 4 बार जब ये कहीं कहीं कॉलम में फिल हो जाए ये चैप्टर, तो फिर मतलब वो A4 साइज स्टिक में, जैसे मान लो पहले जगह आपने पहले ब्लॉक में फिल किया कि सेकेंड डे को आपको रिवाइज करना है NLM, तो NLM पे टिक. एक फर्स्ट लाइक 4 बार लिखा है ना NLM, यस, तो पहले NLM पे टिक, फिर कहीं और दूसरे बार लिखा तो NLM पे टिक, फिर तीसरे बार लिखा तो मतलब 4 बार आपको रिवाइज करना, तो 4 रैंडम डेज को आपने अलॉट कर दिया. वैसे ही मान लो बायो में है बॉडी फ्लूइड्स, तो बॉडी फ्लूइड्स मान लो मैंने 4th को रिवाइज किया, अब मैं सीधा 8th को दे दूंगी उसे, तो मैं जितने बार उसको अपने मेन चार्ट पेपर में लिख रही हूँ उतने बार मैं उसको वो A4 साइज पेपर में मार्क कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं एक्चुअली में उतने बार तो रिवाइज कर रही हूँ ना, और थोड़ा प्रोसेस ईजियर एंड फास्टर हो जाए. ठीक है. अब मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चैप्टर थोड़े ज़्यादा हो गए, इतना ज़रूरत नहीं है रिविजन करने का, तो आप रिप्लेस कर दो. मान लो कि बॉडी फ्लूइड्स 4 बार हो गया, आपको लग रहा है नहीं यार 2 बार इनफ है, ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके लिए इतना तो नहीं नीडेड है, और तो फिर आप क्या करो कि वो 2 जगह को किसी और हार्डर चैप्टर से रिप्लेस कर दो, लाइक थर्मोडायनेमिक्स. सो इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, बट आई हैव गिवन यू अ रफ लेआउट. या ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपको एक दिन में 4 से 5 भी आप कर सकते हो, किसी दिन मान लो संडे है या कोई हॉलीडे है या कुछ भी, आपको लग रहा है नहीं इस दिन मैं थोड़ा पूरा दिन रिवीजन को देना चाहूँगा, तो आप उस दिन एक्स्ट्रा कॉलम्स बना लो अपने उस चार्ट पेपर में. ठीक है. एंड या दिस I think is indeed very helpful, and if it really works out for you guys, then make sure to comment down below and tell me ki yes Divyanshu, it was really nice, you need to come up more with these khurafati ideas. Then I actually look forward and make some more amazing things for you guys. So yeah, thank you for watching. Bye.